afternoon. Sir, when I reached to the border on 25th of February, I was in ME11 border. At that time, sir, we are standing like 24 hours continuously, and the army has started beating us. There was an Indian girls who are standing in front of me. So उनको सर बाल पकड़ के मारा गया है जो यूक्रेनियन आर्मी के लोग थे. जब हम उनको हेल्प के लिए कुछ पूछ रहे थे, वी आर आस्किंग फॉर एनी हेल्प काइंड ऑफ लाइक वाटर, सो दे आर बीटिंग ऑन आवर फीट. पैरों पे इतनी बुरी तरीके से कंटिन्यू, लड़की हो या लड़का हो सर, कंटिन्यू मारा जा रहा था. 3-4 बार तो इतना बुरी तरीके से मारा गया है. बाइक गन से सर मेरी पीठ पे इतनी बुरी तरीके से मारा गया है. अभी भी मुझे लेटने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने के लिए प्रॉब्लम हो रही है. व्हेन आई रीच टू द पोलैंड बॉर्डर सर, ये जो इंडियन यूनियन ऑफ पोलैंड जो वॉलंटियर्स है, गौरव सिंह सर जो है, इन लोग ने मुझे मेडिकल में लेके गया है. वहाँ पे मेडिकल रूम प्रोवाइड किया गया था, जो आपकी बदौलत से, जो आपके थ्रू हमको जो सपोर्ट मिला है वहाँ पर पहुँचने के बाद. बट सर यूक्रेनियन आर्मी डज नॉट स्पीक इंग्लिश. अगर उनको इंग्लिश आती भी है ना, दे प्रिटेंड लाइक दे नो इंग्लिश बट दे वोंट स्पीक यू बिकॉज यू आर एन इंडियन, यू आर वेरी चीप. They said us, and I said this interview sir on NDTV also, but they did not upload it. Oh, Koto, you raised a issue for one thing. I really, we are in tears. I could see that you are in tears, and so we are in tears. The kind of treatment this Ukrainian government has given to you, I strongly condemn, and simply. Just I have one question to you, Koto. Have you brought to the notice of our officials on the border, particularly this, the officials who are deployed on the border? That is what the Indian government claims. Have you brought to their notice this incident? Sir, I was calling each and every number which has provided on the Indian Embassy page on Facebook. Nobody has response, sir. Nobody has response my call. I lost my luggage, I lost my phone, I lost my passport. I was unconscious. But nobody supported me, sir. Nobody has supported me. In front of me there was a Paji, Sardarji who was standing. एक बंदा ठहरे सर एकदम सडन गिरता है. स्नोफॉल इतना तेज स्टार्ट हुआ. I was standing 6 days in border sir, continuously. The army has beaten like something like very difficult time sir, very difficult time. I can't even tell to my mom because I don't have my father. When I was 10 years I lost my father. I stay with my mom. So even though I can't say to my mom this scenario what I have faced there. Koto, we all are family. Please don't feel you are lonely. We are all our Indians, all my Mumbaikars. Particularly, I am a Mumbai president for the Congress. All my Mumbaikars are with you. Our best wishes are with you. And not only that, the Gaurav Singh and of course Indian Student Union has helped you out over there. I must appreciate the way Gaurav Singh, the president, and his team has really worked for our people, for our students, which the Indian government was supposed to do everything. बिल्कुल, मेरा तो ये कहना है कि सीज फायर का फ़ायदा फॉरेन कंट्री के लोगों को ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो कहीं ना कहीं अटक गए हैं तो उनको एक मौका है. क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो एक बच्चा जो है बॉम्ब का शेल लगने से उसकी मृत्यु हुई. तो अगर वहाँ सीज फायर है तो ये इंडियन गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि वो ढूंढ ले, क्योंकि रिकॉर्ड तो होता है एम्बेसी के पास. ऐसा नहीं होता है कि कोई भी घुस जाएगा, ऐसा नहीं होता. तो वो फाइंड आउट करे कि भाई अभी कितने बच्चे हुए. वो फाइंड आउट तो नहीं कर रहे हैं. मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आरोप कर रहा हूँ. अगर उनमें हिम्मत है तो इसका जवाब दे दे. वो जो ऑलरेडी बॉर्डर पे है, अरे उन्हें तो लाइए. क्या प्रॉब्लम है आपकी? अगर आप 10 हवाई जहाज भेज रहे, 20 भेजिए.
और उन बच्चों को -5 डिग्री में जहां वहां अपनी जान हथेली पे लेके वहां बैठे उनको ले आइए, ये हमारा कहना है। सीज फायर तो बाद में की बात है, हालांकि इसका स्वागत करते हैं हम, सीज फायर अगर हुआ है और हुआ भी है तो कोई आखिरी इंडियन जो है वो वहां से इवैक्यूएट होने तक सरकार की जिम्मेदारी, सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। कैसे इन लोगों ने मदद किया और कैसे मुंबई कांग्रेस को पता चला कि इतने बच्चे वहां पर हैं, फंसे हैं, और आप लोग ने कैसे उनको? जी, मैं अखिलेश जी, मैं बताना भी चाहता हूँ, खास करके ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि मैं इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकता था, मैंने नहीं ली इसलिए क्योंकि मुझे इवेंट नहीं करना था। हम हर रोज देख रहे थे, इत्तेफाक से मैंने गौरव को बुला लिया था कुछ और काम से, कुछ पारिवारिक काम था हमारा, इसलिए मैंने उसको बुला लिया था। 3 सालों से उधर है वो, और वो इतने सालों से वहाँ अपने ये जो इंडियन स्टूडेंट यूनियन है उसका वो प्रेसिडेंट है। और वो इंडिया में आने के बाद, मुंबई आने के बाद ये वॉर शुरू हुआ, और फिर जब ये उसको हम देख रहे थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई पोलैंड बॉर्डर जो है, क्योंकि इसमें 4 बॉर्डर सरकार ने तय किया था, चाहे यूक्रेन हो, चाहे पोलैंड हो, चाहे रोमानिया हो, चाहे हंगेरी हो, तो ये 4 बॉर्डर तय किए थे। पर तय करना और बच्चों को वहां तक ले जाना, उन्होंने सरकार ने उनके ऊपर छोड़ दिया कि आप कैसे भी पहुंचाओ। कैसे हो सकता है ये? मुझे तो इस बात से बड़ा परेशान हूं मैं आज भी। आप इमेजिन कीजिए, आपको छोड़ दिया वॉर फील्ड में और आपको कहा कि आप पहुंच जाओ, कैसे पहुंचेंगे? फिर भी बच्चे पहुंचे 3-3 दिन वहां से चल के, पानी नहीं है। उस बच्चे ने उसकी कहानी कही, ना उसके पास फोन था, ना उसके पास ये था, खाने के लिए कुछ नहीं था। उस मिलिट्री को उसने पानी मांगा, उस लड़की का बाल पकड़ पकड़ के मारे, फिर भी इंडियन एम्बेसी ने वो चुप नहीं किया। ताज्जुब है इस बात का। और यहाँ इवेंट कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उनको इस तरह के इवेंट करते हुए। वहां बच्चे मार खा रहे हैं, 6 दिन वो एडमिट रहा। क्यों नहीं इंडियन एम्बेसी ने एडमिट किया? हमारे बच्चों ने एडमिट किया, हमारे बच्चों ने एडमिट किया 6 दिन, उसने खुद कहा, और वो आज हैदराबाद में उसके घर पे आया है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। वहाँ तो अभी 35-40 बच्चे थे, लेकिन इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करना मुश्किल था। पर मैं बताना चाहता हूँ कि गौरव सिंह यहाँ मुंबई में रहने से, हालांकि वहाँ भी रहते तो भी यही मैं काम करता, वहाँ एक अमित लाज करके हमारे इंडियन बिजनेसमैन है, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट इस बात के लिए रहा। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से सिर्फ कोऑर्डिनेट कर सकता था। गौरव यहाँ था, इसलिए एवरी डे सुबह क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, 80 बच्चे वहाँ आज भी उधर है, सारे उधर बॉर्डर पे। किसको होना चाहिए? इंडियन एम्बेसी के लोगों को होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जब यहाँ बात करते, मन की बात करते, मन की बात में बाकी तो सारा बोल दिया, बच्चों की हालत तो कभी उन्होंने बयान नहीं की। क्या बात है? और यहाँ बच्चे मर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में ये कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं। तो ये ऐसा तो कभी भी नहीं देखा इस देश ने। इतने सारी सरकारें आई, मैंने जो इजराइल में हुआ था वहां से इवैक्यूएशन हुआ, हजारों लोगों का इवैक्यूएशन हुआ, ऐसे कोई इवेंट नहीं किया। ये गल्फ हुआ 1.5 लाख लोगों का इवैक्यूएशन हुआ, कांग्रेस की सरकार थी। ये ऐसे इवेंट हमने नहीं कभी की। तो ये किस प्रकार की मानसिकता है ये इस सरकार की, वो मेरा सवाल है।